हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक तमिल मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है GDN। इसमें आर माधवन, सत्यराज, जयराम, प्रियमणि, दुशरा विजयन, विनय राय, तंबी रामैया, नंदलाल, TJ अरुणसलेम, शीला करुणाकरण और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर है कृष्ण कुमार रामकुमार और म्यूजिक दिया है गोविंद वसंता जी ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपना रिएक्शन। இவங்க சொல்ற அந்த தகுதியான மனிதர் இருக்காரு இல்லைங்களா, அவருடைய வயசான காலத்துல பைத்தியம் பிடிச்சி அவரோட சொந்த பில்டிங்க்கு பாம்பு வச்சிருக்காரு. Who the hell is this fakir? GD Naidu. पर्सन का नाम है क्या? யுஎம்எஸ் மூலமா கோடி கோடியா சம்பாதிக்கிறாரு. பாலிடெக்னிக் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ஆரம்பிச்சு கட்டணத்தை வாரி குமிக்கிறாரு. ஆனா ஒழுங்கா டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு மட்டும் என்ன கசக்குதா? வெரைட்டி புடி. But his books are clean and he's working within the system. You are the system. If his books are clean, soil them. சட்டத்துக்கு எதிராக அவங்க நாயுடு அடிச்ச கள்ள நோட்டும் அதுக்கு பயன்படுத்தின மிஷின்ஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ள இருக்கிறதாக எங்களுக்கு தகவல் வந்து. These clever businessmen will have multiple books of account. உங்க கனவுகளுக்கு தோளோட தோல் நின்று ஊக்குவிக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல பொண்ணை பார்த்து நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க. Naidu is doing business with Germany and the Nazis against the interests of the crown. This is treason. இந்த பிரிட்டிஷ் ஃபெல்லோஸ்க்கு ஜெர்மன் காரனையும் பிடிக்காது, நாயுடுவையும் பிடிக்காது. நீங்க அநியாயமா வரியை போட ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நாயுடு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சாரு. அது வரைக்கும் ஒழுங்கா வரியை கட்டிட்டு தான் இருந்தாரு. அவர் பாட்டு வளர்ந்துட்டே போறாரு, கண்டுபிடிப்புகள் அடிக்கிட்டே போறாரு, ஃபேக்டரி மேல ஃபேக்டரி தந்துட்டே போறாரு சார். உங்க சொத்துல 80% பறிமுதல் செய்யறதுக்கான அரசாங்க உத்தரவு. நம்ம நகரத்தின் அரிய தந்தை திரு GD நாயுடு அவர்கள் தான் கண்டுபிடித்த அனைத்து சாதனங்களையும் உழைத்து நொறுக்கப் போகிறார். Okay, now I get it. He bombed everything. யாரடா அப்படி சொல்ற? வெள்ளக்காரன் தான் நம்மளுக்கு எதிரி. அவன் கொடுத்த சண்டை போடணும்னு பார்த்தா நம்ம ஊர்க்காரங்களே நம்மளுக்கு எதிரியா இருக்கிறாங்க. எங்க வந்து யாருக்கிட்ட பேசுவீங்கன்னு தெரியுதா? எந்த நாட்டுல இருந்துகிட்டு நீங்க யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் புரியுங்க. மனசு சுத்தமானவன் சொல்றது பலிக்கும் போய் குறிச்சு வச்சுக்க. இன்னையிலேந்து ஒரு நாள் கூட நாயுடுவால நிம்மதியா தூங்க கூட முடியாது. Which yeah? On the cheek. வேட்டையோட கதையை வேட்டைக்கார எல்லாமே ஒரு சிங்கம் எழுதிச்சுன்னா வீரத்தோட விளக்கமும் மாறிடும். தயவு செய்து கேள்வி கேட்காதீங்க சுந்தரம். Oh, he's a personality, yeah. He's a character. GDN. To be very very frank, मुझे अब तक उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था उनके बारे में. एंड मैंने अभी गूगल किया उनका पूरा नाम क्या है बोल के, गोपालस्वामी दोरैस्वामी नायडू. सो उनका वो बहुत फेमस इन्वेंटर हैं उस टाइम के. ब्रिटिशर्स जब हमारे कंट्री को नोच खा रहे थे उस टाइम, उन्होंने अपने जो इन्वेंशंस थे, अपने जो भी उन्होंने इन्वेंट किया है उसके ऊपर काम करते थे, तो बिजनेसेस चलाते थे. सो इसमें दिख रहा था कि उनके बिजनेस एक्सपेंशन की वजह से जो भी इन्वेंशंस वो ला रहे थे उस वजह से उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि समवन इज़ देयर इन इंडिया हु इज़ मेकिंग इंडिया प्राउड. इंडिया को आगे लेके जाने वाले नए नए इन्वेंशंस लेके आ रहा है जो उनको फ़ायदे नहीं देगा. सो वो सोच के वो कैसे भी करके उनको टैक्सेस के दौरान कुछ भी करके उनको फंसाना चाहते हैं. एंड जब क्लीन बुक्स हैं तो सॉइल करने के लिए, एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम एन इंडियन, वो आइडिया जो है सॉइल करने का वो इंडियन से ही आ रहा है, ब्रिटिशर्स. सो ये सच है कि जो भी दुश्मन हमारे होते हैं वो बाहर नहीं घर के अंदर होते हैं ज़्यादा दुश्मन जो है. सो आई थिंक दिस गिव्स द परफेक्ट एग्जांपल यार फॉर दैट लाइन कि इंडियन ही इंडियंस को डुबाने में हमेशा तैयार रहते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ वाई सिर्फ चंद पैसों के लिए सिर्फ अपने का ही फ़ायदा देखते हैं.
अपने देश को क्या फ़ायदा होने वाला है, अपने लोगों को क्या फ़ायदा होना है, वो देखते ही नहीं, सिर्फ खुद का फ़ायदा देख लेते हैं और उसकी वजह से उनके आंखों के सामने अपना नाम बढ़ाने के लिए, उनकी आंखों के सामने इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए खुद का इस तरह के काम करते रहते हैं। दैट्स व्हाट दे वर शोइंग इन दिस ट्रेलर कि इंडियंस बहुत सारे लोग इनको ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे हैं इनको फंसाने के लिए, इनको अनजस्टली कुछ ना कुछ लीगल टर्म्स में फंसा के रखने के लिए कोशिश कर रहे थे। एंड स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो बॉम्ब लगा के अपने घर को ब्लास्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कोई लाइक दे वर सेइंग लाइक सम मैड मैन बोल के, so I was like what was the logic, like क्या कोशिश कर रहे हैं बोल के। बट देन लेटर आफ्टर हाफ ऑफ द ट्रेलर के बाद मुझे आइडिया आया कि अच्छा ठीक है लाइक आई थिंक बल्ब तब जला मेरे दिमाग में कि ही इज़ ट्राइंग टू एरेज ऑल द बुक्स आई गेस, लाइक जो भी ये लोग इनको अनजस्टली फंसाने की कोशिश कर रहे हैं उसको रूट से ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट वॉज काइंड ऑफ अल्फा मूव। इट्स सच में यार, मैंने वो थॉट आते ही मुझे इतना अच्छा लगा कि वाओ यार, व्हाट अ बैडएस, व्हाट अ गैंगस्टर मूवी इज दैट बोल के अच्छा लगा। एंड आई एम गेसिंग कि जीडियन जी अपने लाइफ में इतना ही कूल रहे होंगे कि इस तरह के डिसीजंस लेने के लिए, लाइक ही इज़ काइंड ऑफ ट्रू पैट्रियट यार। लाइक जिस तरह से वो अपने इन्वेंशंस को हो जाए, अपने जो भी बिजनेस माइंडसेट जो भी है, अपने आइडियाज़ को ब्रिटिशर्स के पास जाने नहीं देना चाहते थे, अपने देश में ही रखना चाहते थे, अपने लोगों के साथ ही शेयर करना चाह रहे थे। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज टेकिंग दैट ड्रास्टिक स्टेप कि जो भी है मैं ख़त्म कर दूंगा बट तुम्हारे हाथों में नहीं आने दूंगा बोल के। उस तरीके का माइंडसेट जो है दैट्स रियली गुड कि वो सेल्फिश रीजंस की वजह से नहीं, अपने देश की तरफ उनका जो प्यार है, उनका जो भक्ति है वो दिखाने के लिए कर रहे थे। दैट मूवी वॉज सो गुड। एंड सिनेमाटोग्राफी हो जाए, द फिल्म मेकिंग वॉज सो नाइस है। लाइक ट्रेलर से पता चल रहा था कि किस लेवल का डायरेक्शन है, किस लेवल का कैमरा वर्क है, फ्रेमिंग्स हो जाए, CGI भी इवन तो थोड़ा कुछ जगहों पे CGI VFX यूज़ किए तो वो लग रहा था, बट दैट वॉज कूल यार। वॉट एवर इट इज़, लाइक जितना भी हमें पता है आजकल CGI VFX ये सब यूज़ किए बगैर मूवीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी इसमें इतना कूलली ब्लेंड हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड वो ट्रेन के पटरियों को दिखाया जाए, लाइक इट काइंड ऑफ गिविंग मी लाइक ये ऑलरेडी कुछ साल पहले के, कुछ डिकेड्स पहले का मूवी स्टोरी लाइन है। सो मुझे उस टाइम का ही फील आ रहा था कि जब हम हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं उस टाइम का जो भी कलर ग्रेडिंग हो जाए, कैमरा वर्क हो जाए, उस तरीके का ही लग रहा था मुझे। आई वॉज लिटरली इन बिटवीन, आई फेल्ट लाइक ये इंडियन मूवी क्या हो गया, ऐसा सडनली मुझे लिटरली एक थॉट फ्लैश हो गया। सो दैट काइंड ऑफ दैट लेवल ऑफ सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड एवरीवन्स एक्टिंग वॉज गुड यार, सत्यराज जी का हो जाए, जयराम जी का हो जाए, एंड मेनली आर माधवन। वाओ। एंड आई लाइक दैट डायलॉग वेयर वो ब्रिटिशर बोलता है ना कि कहाँ आके क्या बात कर रहे हो, पता है क्या, उनके धमकी देने की तरह वो जिस तरह से बात कर रहे थे, एक वार्निंग की तरह, एक थ्रेट की तरह इंटिमिडेट करने के लिए उनको बोलते हैं, तो ही इज़ लाइक कूलली हंसते हुए स्माइल करते हुए बोलते हैं तू किसके धरती पे बैठा है वो तुझे जल्दी पता चलेगा बोल के। दैट वॉज सो गुड यार। लाइक उनकी आंखों में विथ आई कॉन्टैक्ट, with a smile on his face, he's saying that to him, and that was cool. वो मुझे अच्छा लगा। एंड मुझे लगा प्रियमणि जी जिस तरह से एक मैरिड वूमन की तरह दिख रही थी, उनकी वाइफ होंगी, बट शी वॉज गिविंग हिम एडवाइस कि तुम्हें अपने बिजनेस में या फिर तुम्हारे एम्पायर में हेल्प हो सके उस तरीके की लड़की, जो हेल्प कर सके उस लड़की को ढूंढ के शादी करो। सो is she the wife or is she the sister? I don't know, but we have to see. But anyways, like wow, ट्रेलर तो नेक्स्ट लेवल का था यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड मोस्टली मुझे माधवन जी के जो भी डायलॉग डिलीवरी थे, उनके जो क्लोजअप शॉट्स थे, अकेले जो स्क्रीन पे खड़े हुए थे, जहाँ पीछे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था, आगे से बिना पीछे मुड़े जा रहे थे वो एक, और पूरे दाढ़ी के साथ ऑल द रबल बीच में खड़े हुए हैं, वो एक शॉट अच्छा लगा। लाइक एक डिवास्टेटेड पर्सन जो होता है, पूरा सब कुछ उनके हाथ से छूट गया है, उस तरीके का डेसोलूट एक सिलट जो होता है वो दिखाई दे रहा था। एंड
आई थिंक ओल्ड एज में भी जिस तरह से उनका मेकअप किया गया है वो भी अच्छा लग रहा था, एंड ही डिड नॉट लूज हिज फायर। बूढ़े होने के बाद भी वो फायर उनके अंदर था। जिस तरह से वो बोलते ना, प्लीज़ डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस बोल के, वाओ, ही इज लाइक ही नेल्ड द कैरेक्टर बोल सकते हैं यार। बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड आई डोंट नो द अदर कैरेक्टर्स यार, जयराम जी का कैरेक्टर क्या है इसमें, लाइक वो थोड़ा एंटी लग रहे थे उनके, लाइक ही वॉज हेल्पिंग ब्रिटिशर्स आई गेस, उनके जो भी बुक्स हैं वो देख रहे थे, चेक करने के लिए उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे शायद। एंड ऑफकोर्स सत्यराज जी वो इनकी तरफ हैं, माधवन जी के, जीवीएन जी की तरफ हैं, जो हिज राइट हैंड मैन बोलते हैं ना, उस तरीके के कैरेक्टर प्ले करने लगता है। एंड जब जयराम जी उनको बोलते हैं कि तुम्हारे दोस्त को ऐसा होगा वैसा होगा, नींद नहीं आएगी बोल के जो बोलते हैं ना, द वे ही लाइक उन दोनों का जो आई कांटेक्ट है, गुस्से से देखते रहते हैं, ही चीक पिक्चर्स यार, लाइक वो गुस्सा अंदर कंट्रोल करते वक्त तो होता है ना दांत को, वो क्लियरली दिख रहा था उनके चेहरे के ऊपर। अच्छा लगा, लाइक सटल एक्सप्रेशंस होते हैं यार, जो बिना कुछ डायलॉग बोले सिर्फ आंखों से या फिर अपने फेशियल एक्सप्रेशन से जिस तरह से जो भी कहना चाहते हैं वो कन्वे करते ना, उस तरीके के एक्टर्स लाइक दे एक्चुअली नो हाउ टू एक्ट, दे एक्चुअली नो हाउ टू कन्वे द व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट दे वांट टू से। उस तरह की एक्टिंग बहुत मुश्किल होती है, एंड इसमें बहुत सारे से दिख रहे थे, अच्छा लगा यार। एंड म्यूजिक वाज आल्सो सो गुड, लाइक काइंड ऑफ गूज़बम्प्स भी आ रहे थे। एंड आई वाज फीलिंग लाइक वो उस टाइम उन्होंने लाइक जिस टाइम ये मूवी लाइक उनका लाइफ जो था, जो भी उन्होंने फेस किया, वो बहुत उस टाइम उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होंगे, ज़्यादा विथ अगेंस्ट गोइंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स उनको ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं मिलते होंगे, कोई भी हेल्प करने नहीं आते होंगे, बट उन सर्कमस्टेंसेस के बीच में भी उन्होंने जिस तरह से अपना एक नाम बनाया है, दैट्स सो कूल यार, लाइक वाओ, ही इज़ अ लेजेंड। एंड आई एम रियली अशेम्ड टू से कि इतने एक बढ़िया इंसान, उनका जो हार्डवर्क है, उनका जो देश के प्रति उन्होंने जितना अपना काम समर्पित किया है, उनकी वजह से कितना अपने देश को हेल्प हुआ है, उन जैसे लेजेंडरी पर्सन्स को क्यों लाइक वो लाइमलाइट नहीं दिया जाता है, लाइक उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, उनके बारे में क्यों वर्ड स्प्रेड नहीं किया जाता है, लाइक आई डोंट नो यार, जानते होंगे लाइक तमिलनाडु में बहुत सारे लोग जानते होंगे उनके बारे में, बिकॉज ही इज़ कमिंग फ्रॉम दैट स्टेट, उनके स्टेट में है, वहाँ उन्होंने काम किया है जो भी किया है, बट फिर भी थ्रू आउट द इंडिया पीपल शुड नो अबाउट दिस लेजेंडरी पीपल, नॉट ओनली हिम, इनके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो किया है देश के लिए अपना काम किया है उस टाइम से। सो उनके नाम एटलीस्ट उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हर जगह मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, मुझे लग रहा है। I really didn't knew about him before this, but I know I have to read about him more. बहुत curiosity बढ़ रही है कि क्या क्या किया है उन्होंने बोल के। We'll have to check यार। And you guys let me know, आप जानते थे इस मूवी के आने से पहले या फिर you are also like listening about him for the first time? Let me know in the comments. Like, share, subscribe करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।